यंग इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों यंग इंडियंस का स्वागत है जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और समाज में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूँ कि यदि आपके घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर ना आता हो तो शुरू कर दीजिए, इससे आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ती है। और इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में ये वीडियो है। ये हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश बाय लुकिंग एट ए इंग्लिश मूवी। और अब तो जो है यूट्यूब पे भी आपको बहुत से इंग्लिश मूवी मिल जाते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कोशिश करते रहिए। ये चीज़ आपको एक महीने में भी नहीं आ पाएगी, 6 महीने भी लग जाएंगे, लेकिन उससे जो है आपकी नॉलेज बढ़ती है। आप इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं, उससे आपकी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ती है। आप इंग्लिश की कॉमेंट्री सुनते हैं, उससे भी आपकी इंग्लिश की यूज़ कैसे की जाती है उसकी नॉलेज बढ़ जाती है। तो देखिए इस वीडियो को। लेट्स सी। If you want to improve your English by watching movies, so you can improve a lot. So listening is more important by reading. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Improve with Jyoti. If you want to improve your English, please join my channel and subscribe and press the bell icon. जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम लिसनिंग वीडियो वॉचिंग मूवीज से हम इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश बाय वॉचिंग मूवीज? सो फर्स्ट वी हैव टू वॉच बाय सबटाइटल. We have to watch with subtitle, and if we are not understanding anything, we can pause that. After reading and after understanding, we can start. We can watch any drama movie. We can watch any, if we are going to, we can watch any drama movie, family movie. We can watch any documentary movie. By that you can improve your vocabulary, your phrases. You will get new things, phrases, vocabulary, words, and you will get how to make sentence. You will get sentence structure also in that. So if you want to improve your English fast, so you can watch movies and you can enjoy, you can entertainment also with that. And take your notebook. You can, if you are watching movie, you can take a notebook. If you are not getting anything, so you can write on your notebook, and after completing movie you can search that meaning, what was that meaning. So if you are, you will get dialogue. You will get dialogue. You can use that dialogue in with your friend, with your any partner. So you can use, you will get new dialogue in that. So you can use them, and if you are not understanding, you can search them, what was that mean. So if you want to improve, you can watch. And third one, you can, if you watched, you can share with your native speaker. You can talk online with native speaker. You can speak with that. You can improve with that, and you can get confidence also by speaking, by talking someone. So if you want, you can talk and you can share your what did you watch in that with a native speaker. You have to, and third, you have to imitate that dialogue. You have to repeat that what did you watch. While repeating, you have to imitate, you have to repeat. So by that you can improve your spoken, you can get confidence, and you can get more vocabulary, you can get more phrases. So you have to do like that. If you are not understanding anything, you can watch again. You can watch, and you can again you can watch without title. If you watch without title, you will focus on listening only. First you watch with title and subtitle, and you after that you have to watch without title. So by that you will improve listening more. Because you will not read that.
if we read, our focus go on reading. So you have to listen only. You have to not, if you are not getting anything, you have to then read. Otherwise, you have to focus on listening more than reading. So if you want to improve your English spoken, you have to watch movies per day daily. By that you can improve a lot. So if you do not get anything, you can talk with some partner, you can share your views, what was in that character, what was good and what was bad in that movie, you can share with your native speaker. By that your English will improve. And the last point is that if you are watching movies, you have to not think, you have to get interest in that. Then you can listen confidently and you can speak confidently, and what did you get in that. If you are not focusing, you are not getting interest, you have to not watch. Then you have to watch, you are getting interest. Otherwise because you will not listen, you will not listen careful, your focus will go outside. So you have to listen carefully, then you have to discuss with your native speaker. If you like my video, please like and share. And if you did not subscribe my channel, you have watched only, so you are new, so subscribe my channel and press the bell icon, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. हेल्थ इज़ वेल्थ आपने खूब सुना होगा, और हेल्थ जो है एक सुखी जीवन के लिए, एक सक्सेसफुल जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. और अभी तो आप लोग यंग हैं, तो हेल्थ का खूब ध्यान रखिए. उसमें भी आपको उत्साहित करेंगी शिल्पा शेट्टी. यू लाइक टू हैव ए लुक एट हर. उनके वीडियो को आप देखिए, समझिए और पढ़ाइए अपनी योगा की प्रैक्टिस. चलिए देखते हैं. गृह संचालन. बेस पोजीशन में या क्रॉस लेग पोज में बैठ जाइए. हाथ नीज पर रेस्ट करिए. धीरे से सर को नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, पीछे की तरफ और फिर राइट साइड में रिलैक्स्ड, स्मूथ, रिदमिक सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करिए. नेक मसल्स की स्ट्रेच को फील करिए सारे सर्कल्स में. स्ट्रेन मत करिए. जब सर ऊपर मूव करता है तब, जब सर नीचे मूव करता है तब सांस बाहर छोड़ें. अभी भी 80% शादियां जो हैं अपने कंट्री में अरेंज मैरिज हो रही हैं. फादर मदर जो हैं वो आपके लिए ढूंढते हैं. अब लड़का है या लड़की है, बट दे हैव टू सर्च फॉर यू. और 20% में आपके एफर्ट्स है. आप जिस माहौल में काम कर रहे होते हैं, इफ़ यू कम अक्रॉस समबडी, उससे हो जाती हैं. लेकिन वो 80% हो तो रही है अरेंज मैरिज, लेकिन बड़ा टफ पड़ रहा है. इतना आसान नहीं है आज की तारीख में शादियाँ करना. और ख़ुद का भी अभी इंडियंस को आदत कम है. लड़के को लड़की से बात करनी नहीं आती, लड़की को लड़के से बात करनी नहीं आती. तो कुछ डेट वेट पे जाया जाता है. और डेट के अभी मतलब अभी एक प्राइमरी स्टेज में है इंडिया में ये सब चीज़ें. लोग डेटिंग करते भी हैं, बात आगे बढ़ती भी है, फिर कुछ डिस्टर्बेंसेज आते हैं. तो उन सबको कैसे झेलना है, क्या करना है, ये आपको छोटी सी शॉर्ट फिल्म सिखाएगी आपको. लेट्स हैव ए लुक एट दिस शॉर्ट फिल्म. Just take me back यार. यार मैं नहीं जी सकता तेरे पे. सॉरी बोलना है.
Sorry. Sorry. सॉरी बोलने आए थे ना, सॉरी बोल दिया। वेरी गुड। और सॉरी क्यों बोलना पड़ रहा है? ऐसा क्या कहा था तुमने जो गलत था? कुछ रियलाइजेशन है? यार ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुमको सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन तो उठा नहीं रही हो। अब आए हो ना सॉरी बोलने के लिए। दैट्स वॉट। तुम्हारा मन किया तो तुम आ गए। हर्ष, यू ऑलवेज टेक मी फॉर ग्रांटेड। आई टेक यू फॉर ग्रांटेड? अच्छा, व्हाट्सएप पे मेरे को ब्लॉक कौन करता है? बात बात पे इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर देती हो, तब तो मैं कुछ नहीं कहता। दो घंटे बाद अनब्लॉक भी तो किया था ना मैंने। और पिछले 3 सालों में मैंने 3000 बार ब्लॉक किया होगा तुम्हें। तुम चाहते तो कॉल भी कर सकते थे। और कॉल करके क्या कहता? तुम तो ब्रेकअप करने चली थी ना मेरे साथ। यार मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता था बस। एनीवे, अब इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मतलब? चीनी कम है इसमें। चीनी नहीं है उसमें। सुनो, अरे यार सॉरी बोल तो रहा हूँ, अब और क्या करूँ? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। सीरियसली, मतलब हमने उनसे कहा कि हमें शादी करनी है और तुम्हारी माँ हमारी कुंडली मैच कराने चली गई। यार वो मानती है कुंडली मुंडली में, और हमारी कुंडली नहीं मिली, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी भी नहीं है। दोष तो तुम्हारी कुंडली में ही था। मतलब मैं अपनी मॉम का इकलौता बेटा हूँ यार, फिक्र करती है मेरी। अब तुझसे शादी करके मैं मर गया तो? अच्छा, कब दो? अरे खत्म तो करने दे। दो। अरे यार खून जला देती है मेरा। So I shouldn't have told you this, right? मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, what do you want me to do? क्या करूँ? I don't know. Probably be a man. वो करो जो करना चाहिए। And you know what the problem is? That you don't care enough. एक काम करते हैं, भाग चलते हैं, या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना, बेस्ट है। मेरा एक दोस्त है, लॉयर है। What? भागेंगे क्यों? Is there any logic to that? और कोर्ट मैरिज, शादी के सारे फंक्शंस की मैंने थीम भी डिसाइड कर ली थी। मेहंदी, कॉकटेल, रिसेप्शन, सबकी तैयारी मैंने कर ली है। हर्ष, स्टॉप इरिटेटिंग मी मोर। तो ठीक है फिर, हमारी शादी में मेरे पेरेंट्स नहीं होंगे, और क्या। हाँ, और ये सुन के मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होने वाले कि लड़की की साइड से कोई नहीं आ रहा। अच्छा हो गया, बारातियों के खाने का खर्चा बच गया। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी इस सब में क्या गलती है? तुम्हारे पेरेंट्स कुंडली पे कैसे अड़ सकते हैं हर्ष? और मेरे पेरेंट्स तो नहीं गए थे ना कुंडली मैच कराने, और वो ऐसा करते ना तो मैं उन्हें हैंडल कर लेती, अनलाइक यू। यार मेरी मॉम एक गुरुजी को मानती है,
और वो हर चीज मुहूर्त देख के करती हैं। हेलो, हाँ मैं रिया बोल रही हूँ। आंटी, हाँ वो यहीं पे है। हाँ हाँ मैंने उनसे बात कर ली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। या आंटी, बाय बाय आंटी। क्या हुआ? आंटी का फोन था। मम्मा का? हाँ, और उन्होंने पूछा कि क्या तुमने हर्ष के बारे में घर पे बताया, और शादी तो इसी साल करोगे ना। क्या? सुबह तो मुझे बोल रही थी तुम्हारी शक्ल ना देखूं। यार कुछ तो गड़बड़ है यार, एक सेकंड। फक, क्या हुआ? पापा का मैसेज आया हुआ है। वो मम्मी के गुरुजी से गलती हो गई थी। अबे फॉल्ट तेरी कुंडली में नहीं, फॉल्ट मेरी कुंडली में है। तू सेफ है। दिस इज ऑसम। मतलब तुमसे शादी करके मैं मर गई तो चलेगा? वाह सासू माँ, आई लव हर ऑलरेडी। अरे छोड़ना यार, अब सब क्लियर हो गया ना। हाँ तुम। हाँ हाँ नहीं वेट वेट वेट। तुमसे शादी करके मैं मर गई तो मेरे पेरेंट्स की मैं भी इकलौती बेटी हूँ। नो 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 नो। छोड़ना। मॉम, हेलो। हाँ मॉम, हाँ मेड आके चली गई। क्यों फोन किया था? बर्थ डेट? क्यों? हाँ मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप फोन रखो। बाय बाय। क्या हुआ? मॉम हमारा हॉरोस्कोप मैच करा के देखना चाहती है। नहीं नहीं। भाग जाते हैं। अच्छा। नहीं कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज। तुम्हारा कोई दोस्त भी है ना? हाँ हाँ मेरा दोस्त है। हाँ 2 मिनट पहले बोल रही थी मैं संभाल लूंगी सब, उसका क्या हुआ? नहीं अब तो मैं आंटी को खुद फोन करके बोलूंगा कि आंटी फॉल्ट तो मेरी कुंडली में है। हाँ नो हाँ? नो अब लिसन करवा दो शादी। नो